All right. So thank you everyone for joining today's session, and thank you Prabhu sir for joining us again. So today we're going to discuss certain questions which we received from the parents at the time of registration, and so first we will go through those questions, and then you can ask your question over chat, or if we have time, then we can discuss those questions here in this session. So over to you, sir. Okay, fine. Thank you, Pramod sir. It's always a pleasure to be here at this platform. So I'm excited about answer all the queries which all the parents have. So can we go? Do we have to provide some introduction, or we have to directly go with the questions? So, Sir, you can give your introduction because there are some parents who are newly joined here, as well as new parents required to know. So it would be great right. if you can introduce. Okay, sure. So I am Praval Yadav. Uh, I am a special educator associated with the Delhi government, and I have founded an therapy center and a school, Marksri Special School and Therapy Center, which is in Sector 51, Noida. Right. So I have done my masters in intellectual disability and autism spectrum disorders, and currently I am PhD scholar, and my topic is related to autism and other developmental disability. So it's always pleasure to be here. I am just go. I will go one by one questions which already Pramod sir have shared with me. So is it right, sir? Can we go with the question now? Yeah, right, sir. You can. Okay. So like the question which Pramod sir shared with me, the first question is about is homeschooling good for special need children, right? So now after this pandemic lockdown situation, this question emerged so rapidly. Now I uh, most of the parent ask me, sir, is it okay if I start homeschooling for my child? Right? Yeah, they said in future, suppose that if I have, yeah, I wish to pursue higher education for my child. So how homeschooling can help? Do we need any proper certificate for this? Do we require a proper school certificate for this? So there are lots of questions which are emerging in the parents' mind. Okay, so अगर मैं बात करूं कि हाँ हमारे बच्चों को सपोज दैट स्पेशली फॉर चिल्ड्रन विद ऑटिज्म आई कैन से होम स्कूलिंग इज वेरी गुड ऑप्शन. This is my first comment, right? If we see overall, because most of the inclusive school, most of the setups, they don't have the appropriate or adequate services for our children, especially when we talk about mainstream school. So I have seen many students who are going to the schools since 7 year, 8 year. They are just promoted to the next classes, but their basic concept, their current grade appropriate level is not there, right? So I think homeschooling could be a very good option for those students. And I never say that only homeschooling is the option, right? We have to see every child is wired differently. हम किसी को जनरलाइज नहीं कर सकते. वी कांट से कि सपोज दैट हमारे एक फ्रेंड का बच्चा है, वो होम स्कूलिंग कर रहे हैं, तो वो होम स्कूलिंग हमारे बच्चे के लिए भी बहुत अच्छा है. इट डिपेंड्स. हमें एक बहुत केयरफुली क्लोज ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, जिसके बाद हमें डिसाइड करना है कि विच इज द राइट ऑप्शन फॉर आवर चाइल्ड, राइट? अगर बच्चा विद remedial support he can manage to be in mainstream school, we must allow that child, right? अगर हमें लगता है कि हाँ कोई ऐसा बच्चा है जो स्कूलिंग में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, in spite of lots of support,
उसकी थेरेपीज भी चल रही हैं, फिर भी सपोज दैट वो 5th क्लास में अभी बच्चा है और अभी भी उसका लेवल फर्स्ट ग्रेड के अप्रोप्रिएट है या सेकंड ग्रेड के अप्रोप्रिएट है, इन दैट केस वी हैव टू थिंक अबाउट होम स्कूलिंग. सो यस, होम स्कूलिंग इज द ऑप्शन. इसमें जो हमें सपोर्ट करता है होम स्कूल में, दैट इज NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओपन स्कूलिंग. पिछले 2-3 सालों से, आई से लास्ट 5 ईयर से लगभग बहुत ज्यादा लोग NIOS को ऑप्ट कर रहे हैं. आई थिंक हमारे बच्चों के लिए मैं तो कहूंगा कि वो एक तरह से वरदान है. बहुत ही सपोर्टिव एनवायरनमेंट है, बहुत ही उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, उनका जो NIOS का जो सपोर्ट बेस है हमारे बच्चों के लिए, वो एक्सेप्शनल है. तो हम बच्चे को प्रिपेयर कर सकते हैं अपने ग्रेड के अप्रोप्रिएट. घर पे बच्चे की रिमीडियल एजुकेशन के साथ हम उस पर हम काम कर सकते हैं. Once we feel now our child is ready for OB level, there are OB levels in NIOS, like OB level A, which is equivalent to 5th class, OB level B, which is equivalent to level A is equivalent to 3rd class, right? 5th, level B, and level C is 8th class. So once we feel that now our child is ready for the 3rd class, we can register, we can enroll the child for NIOS level A. So this way we can go forward. So in that case, homeschooling is very good. हमें बस ध्यान ये रखना है कि हमें बच्चे को क्या सिलेबस लेके चलना है, उसका करिकुलम क्या होगा, वो हमें पूरा फोकस करके रखना पड़ेगा. अगर हम उस पर अच्छे से काम करते रहेंगे तो आई फील कि हम स्टेप बाय स्टेप बच्चे की स्कूलिंग, और NIOS का कहीं भी ऐसा नहीं है कि उसकी सर्टिफिकेशन की वैल्यू कहीं कुछ कम है ना. जो CBSE सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, जो CBSE का वैल्यू है, सेम वैल्यू NIOS का भी है. तो इस केस में हम NIOS के सपोर्ट के साथ होम स्कूलिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में कहीं ना कहीं एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है. सपोज दैट हमें हायर एजुकेशन, ग्रेजुएशन की बात करें, इवन हम किसी जॉब प्लेसमेंट के लिए बात करें, तो दे आस्क फॉर एनी काइंड ऑफ सर्टिफिकेट. सो आई थिंक होम स्कूलिंग में NIOS होम स्कूलिंग के साथ हमें जरूर ऑप्ट करना चाहिए, उसके लिए बेस्ट है. राइट? Right, sir. So Pramod sir, can we go one by one, or any parent in the interaction they would ask? I guess first we should go with all the questions which we have, and Okay. then we can go with the other questions which parent will ask. Okay. So I think it better if you can point out some more questions. That would be great to answer. Right. So, I mean, I have one question related to this homeschooling. Others can also join. Like as you mentioned, like it's equivalent to what CBSE provide. So let's say if a child doing his 10th or 12th from NIOS, and after that he required admission into graduation, Right. maybe engineering or medical or something else. So वो सर्टिफिकेट की वैल्यू इक्वलेंट ही होगी, मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि नहीं आप एंट्रेंस में भी नहीं बैठ सकते क्योंकि आपने CBSE या स्टेट बोर्ड से नहीं किया. NIOS सर्टिफिकेट जैसे मैंने पहले ही मेंशन कर दिया, वैल्यू बिल्कुल सेम है. जो CBSE का सर्टिफिकेशन का वैल्यू है, दैट इज सेम, इक्वल वैल्यू ऑफ NIOS. तो कहीं पर भी कोई ऐसा इशू नहीं आने वाला है कि अगर आपने सीनियर सेकेंडरी NIOS से किया है तो आप DU में एडमिशन नहीं ले सकते. हर जगह इट्स अ नेशनल बोर्ड, NIOS इज मैनेज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ओवरऑल इंडिया उसका वैल्यू. All right, that's good. Okay, so we can go with next question. Right. So like one of parent asking how to start special education for a child who is 4 years and he is having little understanding and have some communication. So see, most of the question ask me, sir, my child is just 3 years or my child is just 5 years. Can we start a special education right now, or we have to wait for his speech to come, or we have to wait for his sensory issues to be settled down? So this is the most often question which is asked to any special educator. I feel we have to address this issue. Actually, education को हमने कहीं ना कहीं ऐसा लगा, जो मैं पेरेंट से बात करता हूँ आजकल, तो फिर लास्ट 1 और 2 ईयर से 3 ईयर से हमें लग रहा है कि हाँ कुछ पेरेंट्स हैं जो बहुत अर्ली स्टेज में
एजुकेशनल इंटरवेंशन स्टार्ट कर देते हैं, बट अर्लियर I see most of the students come to special educator when they are 10 years, 7 years or 9 years. तो हमें इनिशियली क्या लगता है एज ए पेरेंट भी फील कि हमें पहले स्पीच पे काम कर लेना चाहिए, राइट? स्पीच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमें उसके ओटी इश्यूज हैं उन पे ज्यादा काम करना चाहिए, एजुकेशन पे हम बाद में काम कर लेंगे. Once his sensory issues are settled or once he has started speaking, once he communicates in sentences. तो ऐसा कहीं पर भी नहीं है. इनफैक्ट अगर एजुकेशन इंटरवेंशन बिगनिंग एट द स्टेज ऑफ अर्ली इंटरवेंशन 2 ईयर 3 ईयर अगर हम स्टार्ट कर दें, आई फील ओवरऑल रिजल्ट्स ज्यादा अच्छे आएंगे. एंड हमें हमेशा याद रखना चाहिए एजुकेटर और एजुकेशनल इंटरवेंशनिस्ट जो भी है, ही इज द ओवरऑल कोऑर्डिनेटर ऑफ चाइल्ड्स ओवरऑल परफॉर्मेंस और चाइल्ड्स ग्रोथ. यू कैन से एक एजुकेटर जो है वो आपकी स्पीच, ओटी और जितनी भी सपोर्टेड थेरेपीज हैं उन सबके बीच में एक ब्रिज का काम कर सकता है ना. मैं एक जस्ट अगर मैथमेटिकल नॉलेज की बात करूं तो एक एजुकेटर ही ऐसा पर्सन है जिसको सारी थेरेपीज के बारे में जब वो ट्रेनिंग ले रहा होता है उसको पता होता है ना. हम लोग को स्पीच थेरेपी के बारे में एक चैप्टर पढ़ना होता है, हम लोग को ओटी के बारे में पढ़ना होता है. मेरा पर्पस कहीं पर भी यहाँ ये नहीं है कि नहीं ओटी की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है या स्पीच नहीं है. मैं बस एक इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ कि एजुकेशन थेरेपिस्ट का क्या रोल हो सकता है. तो जब हमें एक एजुकेटर के साथ कंसल्टेंसी हम कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उसको हमें सारी सर्विसेज जो बच्चा ले रहा है, स्पीच, ओटी, वो सब उसके साथ शेयर करें. और आई थिंक एजुकेटर एक बेटर प्लान कर सकता है बच्चे के फर्दर स्कूलिंग के लिए. अगर हमने अर्ली स्टेज पे इंटरवेंशन स्टार्ट कर दिया, अब कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि एजुकेशन में क्या करेंगे हम 2 साल के बच्चे के लिए या 3 साल के बच्चे के लिए एजुकेशन में हम क्या करेंगे. तो एक एजुकेटर का काम है बच्चे को स्कूल के लिए रेडी करना, है ना. सो स्कूल रेडीनेस स्टार्ट विद 2 इयर्स. बच्चे की सिटिंग बिहेवियर है, बच्चे का कॉग्निटिव स्किल्स हैं, अटेंशन, है ना, अटेंशन, आई कॉन्टैक्ट, रेस्पॉन्डिंग, ये सारी स्किल ओवरऑल सारे थेरेपिस्ट काम करते हैं. स्पीच थेरेपिस्ट भी उस चीज पे काम कर रहा होता है, ओटी भी कर रहे होते हैं, बट एक जो स्पेशल एजुकेटर है वो उसको कहीं ना कहीं एजुकेशन पर्सपेक्टिव में देखेगा. और जो स्कूलिंग के लिए रेडीनेस की जरूरत है, सपोज दैट जो कम्युनिकेशन स्कूल के लिए जरूरत है, पीयर इंटरेक्शन की जो जरूरत है, सोशल इंटरेक्शन की जो जरूरत है, जो एकेडमिक रेडीनेस की जब हम बात करते हैं, बेसिक रीडिंग की बात कर रहे हैं, बेसिक राइटिंग स्किल्स की हम बात कर रहे हैं, तो एक एजुकेटर उन पे ज्यादा अच्छे से काम कर सकता है और एक कोऑर्डिनेशन में काम चलेगा. रिहैबिलिटेशन इज ऑलवेज अ टीम वर्क. अगर हम बच्चे को सच में आगे लेके जाना चाहते हैं तो हमें टीम वर्क करना पड़ेगा, जिसमें हमें हमारी पूरी टीम, पेरेंट को इन्वॉल्व करते हुए, पेरेंट, टीचर, बच्चे का है, स्पेशल एजुकेटर, स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, अदर बिहेवियर थेरेपिस्ट जो भी हैं, वो सब लोगों को मिलके एक टीम के रूप में काम करना पड़ेगा. और अगर ये जितनी जल्दी टीम बन जाता है, दैट्स हेल्प द चाइल्ड इन फ्यूचर, राइट. तो ऐसा कोई एज नहीं है कि बच्चे को हम 5 ईयर में जाके एजुकेशन स्टार्ट करेंगे. जितनी जल्दी हो सकता है हम एजुकेशन इंटरवेंशन उनका स्टार्ट करें और बच्चे को कॉग्निटिव एरिया में, स्कूल रेडीनेस की एरिया में जल्दी, जितना जल्दी हो सके हम इंटरवेंशन प्रोवाइड करना स्टार्ट करें. वो बच्चे को आगे स्कूलिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा. क्योंकि हम मोस्टली देखते हैं कि हमारे बच्चों में स्कूल ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा है ना. जब बच्चा सपोज दैट 5th क्लास को उसने पास आउट कर लिया, 8th क्लास तक तो जनरली प्रमोट करते रहते हैं हमारे बच्चे को, लेकिन जैसे ही सीबीएसई का फॉर्म फिल करने की बात आती है 9th ऑनवर्ड्स, उसमें इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं. फिर उसमें स्कूल वाले कहीं ना कहीं डिनाइल मोड में आ जाते हैं. तो अगर हमने पहले से ही उस चीज को टारगेट किया है, पहले से ही हम फोकस्ड होके बच्चे के साथ काम कर रहे हैं और उसका लेवल को हम अप्रोप्रिएट लेवल पे लेके कहीं ना कहीं मेंटेन करके रख पा रहे हैं, अप्रोप्रिएट लेवल, वो थोड़ा बहुत डिले हो सकता है, बट अगर ग्रेड अप्रोप्रिएट बच्चे को हम प्लान करके चलें तो स्कूलिंग कहीं ना कहीं सक्सेसफुल रहेगा. जो इसे हम बोलते हैं ना कि हमारा स्कूलिंग सक्सेसफुल नहीं रहा, बच्चा ड्रॉप आउट हो गया, वो कहीं ना कहीं इसी वजह से होता है कि राइट टाइम पर इंटरवेंशन स्टार्ट नहीं हुआ, पता लगे बच्चा 10 ईयर का हो गया और उसके अब हम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो एकेडमिक गैप तो फिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो कहीं ना कहीं बढ़ता ही रहता है गैप. तो इसलिए जितना जल्दी हो सके हमें स्पेशली स्पीच, ओटी, एजुकेशन, ये 3 थेरेपीज
मोस्टली बच्चों के साथ हमें राइट टाइम पर स्टार्ट कर देना चाहिए। दैट्स इट। All right, sir. So, आई थिंक क्वेश्चंस भी हम लेते रहेंगे, अगर डायरेक्टली भी कोई पेरेंट क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, आई थिंक दैट वुड बी मच बेटर। हाँ, राइट। सो अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड किसी का कोई और क्वेश्चन है तो दैट वुड बी बेटर टू टेक राइट अवे। Okay, so I don't think anyone has any question. So we can take another. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं अपनी स्क्रीन पे देख रहा हूँ, दैट इज इट मैंडेटरी टू सेंड autistic child to special school or normal school, can also work from them? So ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि क्या हमारा बच्चा मैनस्ट्रीम स्कूल में ही हमें भेजना चाहिए या स्पेशल स्कूल में भेजना चाहिए। तो इसके लिए मैं एक बार फिर से वही चीज रिपीट करूंगा। देखिए, हर बच्चा डिफरेंट है, हमें ये देखना पड़ेगा, हमें एक एक्सपर्ट ओपिनियन लेके चलना पड़ेगा इस एरिया में। हमें जितने भी बच्चे के जो भी थेरेपिस्ट हैं उनके साथ कम्युनिकेट करके ये डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या बच्चा हमारा सच में मेनस्ट्रीम स्कूल में जा सकता है। आजकल क्या हुआ, मैंने कुछ सालों से नोटिस किया, जो मेरा एक्सपीरियंस है, कि हमने एक सिर्फ कहते ना कि एक ट्रेंड चला दिया कि नहीं, हमें मेनस्ट्रीम स्कूल में ही एडमिशन कराना है, और हमने कहीं ना कहीं स्पेशल स्कूल को डिनाइल मोड में लेके चले गए। स्पेशल स्कूल को हम कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस देना बंद कर दिया कि नहीं, स्पेशल स्कूल का कोई काम नहीं है, हमारा बच्चा स्पेशल स्कूल में जाके और ज्यादा बिहेवियर सीखेगा, क्योंकि स्पेशल स्कूल में तो काफी सीवियर बच्चे होते हैं, वहाँ अलग अलग ग्रुप के सारे स्पेशल बच्चे हैं, तो वहाँ हमारे बच्चे की लर्निंग कम होगी और इसकी बजाय वो अदर बिहेवियर ज्यादा सीखेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दिस इज मिसकंसेप्शन। हमें ध्यान ये रखना है कि हमारे बच्चे के लिए क्या बेस्ट सूट करता है। जैसे मैंने पहले ही बोला, अगर आपको लगता है, देखिए मेनस्ट्रीम स्कूलिंग के लिए कुछ बेसिक रेडीनेस चाहिए हमें। वो बेसिक रेडीनेस मेनस्ट्रीम स्कूलिंग के लिए क्या है? सबसे पहले तो जरूरत है कि बच्चे की सिटिंग होना चाहिए, राइट। अगर आपको लगता है योर चाइल्ड सिट्स फॉर रिक्वायर्ड टाइम, है ना, उसका अटेंशन स्पेन बेटर है, वो इंटरेक्ट कर रहा है, कम्युनिकेशन डेवलप कहीं समाव हो गया है, अगर बेसिक ये चीजें हैं, एकेडमिक वाइज आपको लगता है कि ही इज फेमिलियर विद बेसिक academic concept like her or his basic concepts like color, shape, size, numbers, those are developed. आपको लगता है कि हाँ, हमारे बच्चे में कहीं ना कहीं ये एक एबिलिटी है कि वो कोई भी स्किल को सीख लेता है ना, और नेक्स्ट स्टेप है वो कहीं ना कहीं उसको रिटेन भी कर पा रहा है। तो अगर ये चीजें आपको लग रही हैं कि हाँ, with the intervention, educational intervention or any therapeutic interventions, if you feel that that child could manage a mainstream school, है ना, वो स्कूल के सिलेबस के अकॉर्डिंग जा सकता है, आई विल से देयर इज बिग यस फॉर mainstream स्कूल। बिल्कुल उस बच्चे को mainstream स्कूल में डालना चाहिए। लेकिन अगर हम सोच रहे हैं कि केवल नाम के लिए स्पेशल स्कूल में हमें बच्चे को नहीं भेजना है और बस हमें एडमिशन देना है, जो आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि मोस्टली mainstream स्कूल्स ने क्या किया है कि उन्होंने वहां पर अपने स्पेशल बीइंग सेटअप्स स्टार्ट कर चुके हैं। टेक्निकली होता क्या है ना, एक mainstream स्कूल को केवल एक रिसोर्स रूम रखना चाहिए, अगर वो सच में हम कहते हैं ना कि इफ दे आर रियली इंक्लूसिव, तो ओनली रिसोर्स रूम दे कुड हैव, अदर सपोर्ट सर्विसेज दे कैन प्रोवाइड थ्रू द रिसोर्स रूम। बट हुआ क्या है कि आजकल स्पेशल स्कूल्स ही एक तरह से सेटअप कर दिए गए हैं mainstream स्कूल में, तो आप कह सकते हैं कि देयर इज ओनली फिजिकल इंटीग्रेशन, केवल mainstream स्कूल का बिल्डिंग है वहां पर, लेकिन अगर देखा जाए तो इंक्लूजन जैसी चीज नहीं है। आई हैव वर्क विद इंक्लूसिव स्कूल्स, मैंने ये पर्सनली खुद फील किया है कि उस स्कूल में सिर्फ नाम के लिए बस एक बिल्डिंग में एक अलग ब्लॉक बना दिया है, दैट इज स्पेशल बीइंग वो बोल देते हैं, और वहां पर वो सारी थेरेपीज दे रहे हैं। तो इट्स अ काइंड ऑफ स्पेशल स्कूल, वो भी एक स्पेशल स्कूल ही है, बस नाम एक लग गया है वहां पर स्कूल का। तो आई थिंक हमें ये चीजें थोड़ा सा कहते हैं ना कि हमें एनालिसिस करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा इस चीज को लेके कि सच में क्या वो इंक्लूजन है, और अगर केवल नाम का इंक्लूजन है, सर्विसेज वो बच्चा भी स्पेशल नीड बच्चों के साथ ही है, उनका ग्रुप डिफरेंट है, तो फिर
कोई फायदा नहीं है, फिर तो स्पेशल स्कूल बेटर है ना। क्यों हम उतना ज्यादा फी भी पे कर रहे हैं, उतने ज्यादा रिसोर्सेज हम बच्चे के साथ लगा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन जनरलाइज नहीं कर सकते हम, ये अपने बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि विच इज बेटर। आजकल जो न्यू इवन मैं लीगली अगर बात करूं तो जो हमारा आरपीडी एक्ट आया है, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 2016, उसमें भी बड़ा क्लियर कर दिया है। उन्होंने बोल दिया है कि जो बच्चे एडुकेबल ग्रुप में हैं, जो बच्चे स्कूलिंग में जा सकते हैं, जिनका एजुकेशन में लग रहा है कि आगे स्कोप है, तो दे कैन ऑप्ट फॉर द इंक्लूसिव स्कूल। और जिन बच्चों को बहुत ज्यादा सपोर्टेड सर्विसेज की जरूरत है, जिन बच्चों को ज्यादा केयर की जरूरत है, जिन बच्चों को स्किल ट्रेनिंग की जरूरत है, तो पैरेलली स्पेशल स्कूल्स और स्किल सेंटर्स विल बी देयर। तो ऐसा नहीं है स्पेसिफिकली कि नहीं स्पेशल स्कूल्स बंद हैं या स्पेशल स्कूल्स अब आगे वर्क नहीं करेंगे। स्पेशल स्कूल भी पैरेलली चल रहे हैं, इंक्लूसिव स्कूल भी है। ये हमें डिसाइड करना है कि हमारा बच्चा किस में ज्यादा बेटर कर सकता है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो स्पेशल स्कूल में जाके बच्चे दे हैव डन एक्सेप्शनली वेल, वो आज एम्प्लॉयमेंट में है। कोई बच्चा आज वो उसने 12th स्टैंडर्ड एनआईओएस से किया, आज वो इग्नू से हिस्ट्री में भी ऑनर्स कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो होम स्कूलिंग से इवन एनआईओएस के थ्रू, स्पेशल स्कूल्स के थ्रू भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो अगेन ये डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर, राइट। एज ए एजुकेटर, जो मोस्ट ऑफ द पेरेंट आस्क मी वन क्वेश्चन, दैट इज हाउ टू डेवलप रीडिंग एंड राइटिंग इंटरेस्ट। जो क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा है कि रीडिंग और राइटिंग इंटरेस्ट कैसे डेवलप करें, है ना। हमारा बच्चा तो जब हम राइटिंग की बात कर रहे हैं वो पेंसिल ही नहीं पकड़ता है, वो लिखना ही नहीं चाहता है, पेंसिल को थ्रो कर देता है। या जब हम रीडिंग की बात कर रहे हैं तो वो नोटबुक के पेपर्स फाड़ देता है। वो रीडिंग के लिए उसका लेवल ही नहीं है। हाउ टू स्टार्ट विद रीडिंग, हमें स्टार्ट कैसे करना है रीडिंग। तो एक बहुत देखिए ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है कि इंटरेस्ट कैसे बिल्ड करेंगे। इंटरेस्ट की जहां तक बात है, बच्चे को इनिशियली थोड़ा फन वे में आप इंट्रोड्यूस करिए रीडिंग वगैरह। जैसे इनिशियली आप कोई टारगेट लेने की बजाय बच्चे को पिक्चर बुक में इंटरेस्ट बिल्ड करने की कोशिश करिए कि वो पिक्चर रीडिंग कर रहा है, पिक्चर्स देख रहा है। इनिशियली उसमें कोई भी आप क्वेश्चंस पुट मत करिए, लेट हिम एंजॉय। बच्चा जो भी देख रहा है, पेजेस को टर्न कर रहा है, जो भी कर रहा है वो उस बच्चे को करने दीजिए। जब एक बार वो इंटरेस्ट बिल्ड होना स्टार्ट हो जाए बच्चे का, देन यू कैन स्टार्ट विद द प्रॉपर रीडिंग इंटरवेंशन। सपोज दैट हमें उसकी फोनेमिक अवेयरनेस पे काम करना है, साउंड सिंबल्स के ऊपर काम करना है, बेसिक कॉन्सेप्चुअल अवेयरनेस की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो कॉन्सेप्चुअल अवेयरनेस ही आता है। सपोज दैट हमें काम करना है बच्चे की रीडिंग पे, तो पहले उसको लोअर केस या अपर केस अल्फाबेट रिकॉग्निशन होना चाहिए। तो हमें सबसे पहले रिकॉग्निशन पे काम करना है। रिकॉग्निशन को हम बहुत इंटरेस्टिंग बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लैश कार्ड्स ना। बहुत आजकल तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिसके साथ हम फ्लैश कार्ड्स, कलरफुल फ्लैश कार्ड्स के साथ हम ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन सिखा सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल अवेयरनेस सिखा सकते हैं बच्चे को, मैचिंग, सॉर्टिंग। तो वंस द चाइल्ड हैज बेसिक कॉन्सेप्चुअल अवेयरनेस, फिर उसको हम बेसिक फोनोलॉजिकल अवेयरनेस पे लेके जा सकते हैं। स्पेसिफिकली अगर हम रीडिंग की बात करें, हमें फोनेटिक्स में सबसे पहले फोनेमिक अवेयरनेस की बात करनी है, तो हमें बच्चे को हम साउंड्स को सिखाना स्टार्ट कर देंगे। सपोज दैट लोअर केस अल्फाबेट्स के जो फोनेमिक साउंड्स हैं, सपोज दैट ई को हम ए बोलते हैं, बी को ब बोलते हैं, तो वो हम रीडिंग स्टार्ट कर देंगे। जब थोड़ा सा हम उसके साथ पिक्चर्स को एसोसिएट करेंगे तो बच्चा और इंटरेस्ट लेगा। तो एक एक साउंड को हम बहुत सारी पिक्चर्स के साथ, सिंबल्स के साथ एसोसिएट करना स्टार्ट कर देंगे, तो वो बच्चा कहीं ना कहीं इंटरेस्ट लेगा। और ऐसा नहीं है कि हमें वेट करना है कि जब बच्चा हमें सपोज दैट रेस्पॉन्ड करना स्टार्ट करेगा, जब बच्चा हमें बहुत इफेक्टिवली आंसर करेगा, देन ओनली वी विल स्टार्ट दिस इंटरवेंशन। ऐसा नहीं है, हमें बहुत इनिशियल स्टेज में ही अगर हम काम करते जाएंगे बच्चे का इंटरेस्ट आ जाएगा। स्पेसिफिकली अगर मैं राइटिंग की बात करूं तो डायरेक्ट पेपर पेंसिल लेके राइटिंग की अगर हम बात करें तो उसकी बजाय पहले बच्चे को खूब सारा फाइन मोटर एक्टिविटीज कराइए, है ना। बच्चे को सपोज दैट हमें राइटिंग का टारगेट करना है, तो बच्चे को पेंसिल और पेपर की बजाय आप वाटर कलर के साथ एक्टिविटीज करिए। आप सैंड ले लीजिए, एक ट्रे में सैंड के ऊपर पहले लिखवाना, सिंपल स्टैंडिंग लाइन, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल लाइंस, छोटे छोटे पैटर्न्स आप सैंड में यूज कर सकते हैं। आप डफ वर्क बच्चे के साथ ज्यादा से ज्यादा करिए,
जितनी ज्यादा कोशिश हो बच्चे की कोऑर्डिनेशन वाली स्किल्स पे काम करिए। सपोज दैट उसको सीजर का यूज करना सिखाइए। बच्चे को आप मोटर प्लानिंग की एक्टिविटीज करा सकते हैं। एक ब्लॉक्स को प्रॉपर अल्फाबेटिक में हमें अरेंज पैटर्न में अरेंज कर सकते हैं। सपोज दैट हमें एल की हम प्रैक्टिस बच्चे को करा रहे हैं तो ब्लॉक्स के साथ एल बना दें। ब्लॉक्स के साथ पहले हमें राइटिंग के लिए प्रैक्टिस कराना चाहिए। ब्लॉक के साथ हम जब बनाएंगे अल्फाबेट नंबर्स, आजकल बहुत सारे गेम्स अवेलेबल हैं जिसमें डॉट्स को ज्वाइन करके अल्फाबेट नंबर्स बना रहे हैं हम, है ना। बहुत सारे आजकल थ्रेड की एक्टिविटीज आ गई हैं जिसमें हम इलास्टिक थ्रेड्स होती हैं उनको यूज करके हम अल्फाबेट नंबर्स बना सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। थोड़ा सा अगर आप थेरेपिस्ट के साथ टच में रहेंगे, दे कैन गाइड यू बेटर, वो आपको और ज्यादा एक्टिविटीज बता सकते हैं। तो बट कोई जल्दबाजी ना करें। पेपर पैकेज हमें जल्दी से बच्चे को पेंसिल से डॉट ज्वाइनिंग स्टार्ट कर देनी है। आराम से टाइम लें, बच्चे की प्री रिक्वेस्ट पे पहले काम करें। अगर बच्चे की प्री रिक्वेस्ट अच्छे से बच्चे ने सीख लिया है, कवर कर लिया है, तो राइटिंग भी उसके लिए उतना ही ईजी हो जाएगा। बेसिकली राइटिंग इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क, उसमें बहुत सारी स्किल्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो वो सारी स्किल्स को कंबाइन जब हम यूज कर रहे हैं तो हमें ज्यादा टेंशन की जरूरत है, हमें ज्यादा फोकस्ड होने की बच्चे को जरूरत पड़ती है। तो इसलिए जितना वो एक फन वे में होगा, जितना प्ले वे मेथड में हम उसको सिखाएंगे, वो बच्चा ज्यादा इंटरेस्ट के साथ उसको सीखेगा। उसकी बहुत सारी टेक्निक है। रीडिंग राइटिंग के लिए एक अलग से एक सेमिनार हो सकता है कि राइटिंग कैसे डेवलप करना है, बट बेसिकली जो मैं आपको बता रहा हूँ वो वही है। पहले अब उसकी प्री राइटिंग स्किल्स पे ज्यादा काम करें, पेपर पेंसिल की जल्दबाजी ना करें, उसको बहुत सारा क्ले वर्क, वाटर कलर वर्क, क्राफ्ट एक्टिविटीज कटिंग सब करें। फिर स्टेप बाय स्टेप क्रेयॉन्स के साथ स्क्रिबलिंग, डॉट जॉइनिंग, सिंपल पैटर्न्स को कॉपी करना, सिंपल पैटर्न्स को ट्रेस करना, उस वे में हम आगे लेके जा सकते हैं। All right. So, anyone has any question? किंजल, आपने हैंड रेज किया हुआ है, कोई क्वेश्चन है आपके पास? Okay, no. Right. All right, so we can go ahead with next question. Okay. Any question in chat box, sir? If we can see. No, so far there is no question in chat box. Right, right. तो जो आपने मुझे क्वेश्चन भेजे हैं उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है how to prepare a child for school environment, है ना। once school will open, how my son will cooperate with teachers and other kids. So yeah, it is challenging time. बच्चों को बहुत ज्यादा गैप हो गया है, ऑलमोस्ट 2 years हैं, बच्चे घर पे हैं, और मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आर वरीड कि वंस द स्कूल इज स्टार्टेड हमारा बच्चा कैसे इंटरेक्ट करेगा, है ना। वो या जितनी लर्निंग की है वो कहीं लर्निंग ऐसा तो नहीं है कि वो भूल गया है ना। या क्या और न्यू चैलेंजेस फेस करने वाले हैं, हमें कहीं जीरो से तो नहीं स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बट बिलीव मी, वंस स्कूल्स आर ओपन हमारे बच्चे बड़े अच्छे से उसमें कोप अप कर लेंगे, आई ट्रस्ट। एंड जहां तक स्कूल एनवायरनमेंट की बात है कि स्कूल एनवायरनमेंट पे हम कैसे काम करें, है ना। तो आई थिंक जो मैं क्वेश्चन से समझ पा रहा हूँ, स्कूल एनवायरनमेंट से उनका मतलब होगा कि हम स्कूल में जो एनवायरनमेंट है उसकी ट्रेनिंग घर पे कैसे दें, या उसके लिए हम बच्चे को प्रिपेयर कैसे करें। तो एक्चुअली सर हो क्या रहा है इस टाइम पे कि जो ऑनलाइन मेथड है उसमें सब कुछ ऑनलाइन हो रखा है, देयर इज नो ह्यूमन इंटरेक्शन एंड पेरेंट्स को ही ज्यादा काम करना पड़ रहा है बच्चों के साथ में। तो वो जो अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि प्रमोट कर करके आगे तक पहुंचा देंगे, अब जो लास्ट ईयर थे वो इस साल आ गए, अब ये अगले साल चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लेट्स अज्यूम कि नेक्स्ट ईयर जुलाई में बच्चे स्कूल जाना शुरू कर देते हैं, वहां पर क्या होता है कि वो न्यूरोटिपिकल के साथ भी चैलेंज आएगा कि हाउ टू इंटरेक्ट विद पीयर्स, राइट, बिकॉज 2 years का गैप हो चुका है। और हमारे बच्चों के साथ और ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि छोटी क्लास में है तो चलो क्लास में भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो उसके साथ साथ बाकी बच्चे भी दौड़ रहे हैं तो काम चल जाता है। लेकिन जैसे ही बड़े हो जाते हैं बच्चे, सारे बैठे हुए क्लास में और वही सिर्फ यहाँ वहाँ रोटेट कर रहे हैं, तो फिर एक प्रॉब्लम हो जाती है। तो उन सब चीजों को कैसे कंट्रोल करें, ये भी एक क्वेश्चन है। राइट, देखिए इसके लिए एक सबसे बेस्ट, अगर मैं पीयर इंटरेक्शन की बात करूं, सोशल इंटरेक्शन की बात करूं, तो नाउ इट इज द टाइम वी शुड टेक द इनिशिएटिव्स। इनिशियली
we can start the interaction with our family members, right? अगर हमें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आर वैक्सीनेटेड नाउ, काफी लोगों ने वैक्सीनेशन कर लिया है, तो अपनी फैमिली में ही छोटी छोटी बच्चे के साथ आप फैमिली गैदरिंग्स प्लान कर सकते हैं। सपोज बच्चे के कजन्स हैं, है ना, बच्चा अपने मामा जी के घर पे जाके अपने जो भी उसके कजन्स हैं उनके साथ फैमिली इंटरेक्शन हम स्टार्ट कर सकते हैं। एंड मैं अभी थोड़ा सा नोटिस कर रहा हूँ कि कुछ पेरेंट्स लोग आपस में छोटे छोटे ग्रुप बना के अब एक्टिव हो गए हैं, है ना। वो सोच रहे हैं कि चलो स्कूल जब तक स्टार्ट नहीं होते हैं, वी आर वैक्सीनेटेड, हम अपने बच्चों को एक छोटी छोटी आउटिंग्स किसी पार्क में जाके हम 1 घंटा वहां बच्चे के साथ एक्टिविटीज करेंगे। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी नाइस आइडिया। हमें अब छोटी छोटी एक्टिविटीज, इवन जो लोग सोसाइटीज में रह रहे हैं, है ना, सपोज दैट एक सोसाइटी में 4 बच्चे हैं, तो उनको उनके पेरेंट्स को कहीं ना कहीं अब ये इनिशिएटिव लेना चाहिए with the following all the precautionary measures। मैं ये नहीं कहूंगा कि अब बच्चे के साथ अब कोविड खत्म हो गया, क्योंकि अभी कोविड के से हमें उतना ही प्रिकॉशन की जरूरत है, लेकिन हाँ हमें थोड़ा सा अब उस फियर से आगे निकलना पड़ेगा। हमें थोड़े से कुछ एक स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो बेटर है कि आप सोसाइटी में सपोज दैट आपके 4 पेरेंट्स रह रहे हैं who have children with special need, तो आप 4 लोग मिलके सोसाइटी में कुछ बच्चे की जाके, जो सोसाइटी का कॉमन पार्क है आपका, उसमें जाके कुछ एक्टिविटीज प्लान करिए, है ना। कुछ एक किसी दिन एक हमें प्लान कर लेना है कि चलो एक के घर पे हम कुछ जाके एकेडमिक एक्टिविटीज करेंगे, है ना। उस एकेडमिक में बहुत सारी एक्टिविटीज हो सकती हैं, बच्चों का इंटरेक्शन तो है ही, साथ में आप व्हाइट बोर्ड की एक्टिविटीज कर सकते हैं। कुछ आपने सिंपल 5 सेंटेंस, अगर बच्चे का एकेडमिक लेवल है कि वो सेंटेंसेस वगैरह कॉपी कर सकते हैं, तो सब अगर हमने एक बोर्ड पे जाके एक्टिविटी 5 सेंटेंसेस लिख दिए, और आप 3-4 बच्चे हैं जो पेरेंट्स वहां गए हुए हैं, वो वहां से व्हाइट बोर्ड से उसको कॉपी करेंगे एक एक्टिविटी। बहुत सारी एकेडमिक एक्टिविटीज हम कर सकते हैं। बच्चों को बेसिक कॉन्सेप्ट, सब अगर उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं है, कलर, शेप, साइज, नंबर्स, अल्फाबेट्स, वो हम ग्रुप में सिखा सकते हैं 3-4 बच्चों को। और हमें थोड़ा सा ग्रुप बना रहे हैं तो कोशिश यही रखनी है कि अपने बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग हम पीयर ग्रुप्स बनाएं। सपोज हमारा बच्चा अगर अभी स्कूल रेडीनेस वाले ग्रुप में है, 4 ईयर का, 5 ईयर का है, जिसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे भी हमें काम करना है, बेसिक रीडिंग राइटिंग स्किल्स पे काम करना है, तो कोशिश करें कि एक ऐसा ही ग्रुप हमें बन जाए जो 3-4 बच्चे सेम एज ग्रुप के हों, सेम लेवल के हों। तो उनको हम ये छोटी छोटी गैदरिंग में जाके एकेडमिक कॉन्सेप्ट, कुछ फन एक्टिविटीज, रीडिंग के लिए हम फन कार्ड्स के साथ एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो बहुत सारी एक्टिविटीज हम ये छोटे छोटे लेवल पे प्लान कर सकते हैं। आई थिंक ये हेल्प करेगा कि बच्चे के कहीं ना कहीं एंजाइटी से भी बाहर आने में हेल्प करेगा। सपोज दैट अब 2 साल तक बच्चे लॉकडाउन में घर पे हैं, और जब वो बच्चे एक साथ जब स्कूल ओपन होंगे जाएंगे, तो उनको उस नई सिचुएशन में अडेप्ट करना, वहाँ अपने आप को फिट करना उस एनवायरमेंट में थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा। तो बेटर है कि हम उसको अभी से प्रिपरेशन कर दें। अगर ये मैं जो छोटी छोटी एक्टिविटीज बता रहा हूँ कि हमने 4 बच्चों को पार्क में ले जाके एक्टिविटी करी, इससे क्या होगा, ये एंजाइटी रिलीज करने में हेल्प करेगा, है ना। जो बच्चे 2 ईयर में कहीं ना कहीं एंजाइटी जो है वो रिलीज होगा, बच्चे तो में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, है ना, वो अपने इंटरेक्शन स्टार्ट कर देंगे। तो मैं तो अभी यही सजेस्ट करूंगा कि ये छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं करें। जहां तक स्कूल एनवायरनमेंट की बात इस क्वेश्चन में है, स्कूल एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करें, तो उसके लिए देखिए स्कूल एनवायरनमेंट में बेसिकली होता क्या है, एक क्लासरूम एनवायरनमेंट क्या है कि बच्चा एक क्लास में बैठेगा, वो उसका सिटिंग बेटर होगा, वो अपनी क्लास के अकॉर्डिंग लैंग्वेज का यूज करेगा, उसकी लैंग्वेज अपनी पीयर ग्रुप के अकॉर्डिंग होगी, वो एकेडमिक कॉन्सेप्ट्स को अपनी क्लास के अप्रोप्रिएट करेगा। तो ये 3-4 बेसिक चीजें हैं। तो हमें इन चीजों पर ध्यान रखना है कि जब भी हम घर पे भी बच्चे को स्टडी करा रहे हैं, घर पे भी बच्चे को हम कोई कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, तो आप एक रूम बना लीजिए प्रॉपर। मैं हमेशा ये चीज सजेस्ट करता हूँ। और एक प्रॉपर टेबल चेयर होना चाहिए, जो स्कूल में हमारी टेबल चेयर होती है, प्रॉपर स्टडी टेबल हो, आप वो स्टडी टेबल अपने पास रखिए। और एक आपने प्लेस फिक्स कर दिया कि हम स्टडी करेंगे, तो सपोज दिस इज योर क्लासरूम काइंड ऑफ थिंग, दिस इज योर स्टडी रूम, है ना। तो आपके स्टडी रूम में ही जाके हम पढ़ाई करेंगे। आप अदर एक्टिविटीज पूरे घर में कहीं भी कर सकते हैं, उसके बेड पे कर सकते हैं, डाइनिंग एरिया में कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन मेक श्योर कि जब हम एकेडमिक कॉपी वर्क कर रहे हैं, पेपर पेंसिल वर्क कर रहे हैं, जब हम टेबल टॉप एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो प्रॉपर हम उसी एरिया, उसी स्टडी रूम में जाके करें। और स्टडी रूम में आप व्हाइट बोर्ड जरूर रखिए, है ना। अगर आपके पीयर ग्रुप है, बच्चे के कोई सिबलिंग है, तो आप सिबलिंग को इन्वॉल्व करिए कि सपोज बच्चे का बड़ा भाई या छोटा भाई है, वो कुछ एक्टिविटी करेगा, उसको उसे बच्चे को फॉलो करना है।
सपोज दैट आप व्हाइट बोर्ड पे कुछ 5-10 वर्ड्स लिख देते हैं, उसको से कॉपी करना है, और एक बच्चे को रेस्पॉन्ड करना सिखाना है। सपोज दैट व्हेन यू आस्क अ क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन कैसे रेज करना है, आपको क्वेश्चन कैसे एड्रेस करना है, आपसे जो पूछा है उसको रेस्पॉन्ड कैसे करना है, प्रॉपर आपको सेंटेंस में आंसर देना है। तो ये छोटी छोटी चीजें हम विद इन अ होम एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं कि जिसमें हमें स्कूल की जो स्किल्स हैं, जो स्कूल में स्किल्स यूज होती हैं, वो हम टारगेट कर सकते हैं, जिसमें रेस्पॉन्डिंग है, लैंग्वेज है, एकेडमिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उस पर हम फोकस कर सकते हैं। राइट, आई थिंक चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। यस हरप्रीत, आप पूछ सकते हो क्वेश्चन अपना। 10 year old girl is getting independent in writing, what we can do next। ये क्वेश्चन हमारे पास भी है वैसे। हरप्रीत आप हैं? ओके सर, Yes, आप क्वेश्चन। I'm here. Yeah, hi. So your question is like your daughter is 10 year old, right? Yeah. And okay. She's not हाँ, good in बताइए English मैम as प्लीज, well. She know क्या how इशू to आ read. रहे हैं? Pardon? व्हाट आर द इश्यूज एक्चुअली? आपको कहाँ लग रहा है कि कहाँ पर बच्चा इंडिपेंडेंट नहीं काम कर पा रहा है? सर उसको थोड़ा सा हैंड, उसको वो प्रॉम्प्ट मांगती है लिखने के लिए ना, और एक थ्रोइंग है उसमें, जैसे पेन नहीं मूव तो शी इज नॉट रेडी टू होल्ड पेन, और शी थ्रो कलर एज वेल। राइट राइट राइट। सी, इसमें होता क्या है, व्हेन वी इट इज अबाउट फीडिंग आवर टास्क। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम राइटिंग बच्चे को सिखा रहे होते हैं ना, तो हमने बच्चे को एक प्रॉम्प्ट देना होता है, दैट इज कॉल्ड प्रॉम्प्टिंग, जहां पर बच्चे को हम फिजिकल प्रॉम्प्ट, वर्बल प्रॉम्प्ट, क्लू देते हैं बच्चे को। तो वो हम कॉन्स्टेंटली बच्चे को प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग द राइटिंग इंटरवेंशन, जब हम राइटिंग बच्चे को सिखा रहे हैं। ये क्या होता है, बच्चा उस प्रॉम्प्ट का फिर कहीं ना कहीं हैबिचुअल हो गया, उसने उस प्रॉम्प्ट की आदत डाल दी कि सपोज दैट जब आप बच्चे के हैंड पे हाथ रख देंगे, इवन मैंने नोटिस किया है कि बच्चा इज डेवलप्ड हिज राइटिंग स्किल, है ना, देयर इज नो इशू, हिज लेटर नंबर फॉर्मेशन, इवन ही इज राइटिंग सेंटेंसेस, बट ही नीड प्रॉम्प्ट्स। प्रॉम्प्ट भी क्या है कि कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, बस एक फिंगर टिप भी अगर आप उसके हैंड पर रख देंगे ना, ही और शी विल राइट परफेक्टली। लेकिन अगर आपने वही फिंगर टिप अगर बच्चे के हाथ से हटा लिया, तो वो एक सिंगल वर्ड लिखने को रेडी नहीं है। तो ये एक्चुअली बहुत सर कॉमन चीज है। प्रॉम्प्ट हमें इसलिए देना पड़ा या हैंड होल्ड इसलिए करना पड़ा क्योंकि उसकी थ्रोइंग की हैबिट थी। राइट, समझ गया। तो इसमें एक कभी कभी ना बच्चा ये बिहेवियर बना लेता है। अगर मैं थ्रोइंग की स्पेशली बात करूं, तो एक तो ये है कि हमें बहुत ही टाइमली प्लानिंग के साथ प्रॉम्प्ट को रिड्यूस करना है, दैट इज कॉल्ड फेडिंग। हमें फेडिंग यूज करनी है कि कब बच्चे की प्रॉम्प्ट हमें खत्म करना है धीरे धीरे। जहां तक आपने ये थ्रो की बात की है कि बच्चा थ्रो कर देता है, तो कभी कभी मैंने क्या देखा है, मोस्टली ये होता है कि पेरेंट अपनी सपोज आप काम कर रहे हैं, तो आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भी बच्चा पेंसिल थ्रो कर देता है। वो सोचता है कि चलो मैंने पेंसिल लिया, फेंक दिया, मम्मा जब तक उसको पिक करेंगे या मुझ पर थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, और तब तक मेरा काम हो गया, टाइम स्पेंड हो गया। तो मोस्टली जो मैंने ऑब्जर्व किया है, दैट इज बिहेवियर इशू, है ना। बच्चा हैबिट बना लेता है, बिहेवियर बना लेता है, और कहीं ना कहीं उसको प्लेजर फील करता है। सपोज उसने पेंसिल फेंक दिया, आप परेशान है, आपने बच्चे पे गुस्सा किया, या आपने जब तक उठाएंगे टाइम वेस्ट हुआ, वो खुश है कि मेरा काम हो गया। तो इसमें हमें करना क्या है, जो मैंने ट्राई किया है और इफेक्टिव भी रहा है, आप ना बच्चे के साथ जब भी राइटिंग का काम कराना स्टार्ट कर रहे हैं, आप कम से कम 8-10 पेंसिल साफ करके पहले ही रखिए अपने पास, ठीक है। और आप उसे पेंसिल दीजिए बच्चे को, अगर वो समय थ्रो कर देता है, अपने कोई भी इमोशन नहीं देना है। इफ यू जस्ट कैन फील लाइक हाँ मुझे अच्छा नहीं लगा, आप यू कैन मेक हिम और मेक हर फील कि आपने किया बेटर, अच्छा वर्क नहीं है, बट आप उसे बिल्कुल भी वर्बली नहीं बताएंगे कि नहीं आपने अच्छा नहीं किया है। आप बस फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू उसको ये जता देंगे कि हाँ आपने यू हैव डन समथिंग व्हिच इज नॉट राइट। आप उसको नेक्स्ट पेंसिल दे दीजिए, है ना। फिर भी अगर वो थ्रो करती हैं, आप एक और पेंसिल दे दीजिए। आपके पास 8-10 पेंसिल्स होंगी, आई एम श्योर कि वो ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 पेंसिल फेंकेंगी, उसके बाद वो काम करना स्टार्ट कर देंगे, जो मैंने ये पर्सनली ऑब्जर्व किया है। ये टेक्निक काम करती है, तो एक तो आप ये टेक्निक करके देखिए। दूसरा ये है कि आप छोटी सी सोशल स्टोरी बना सकते हैं, अगर उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है।
अगर कॉम्प्रिहेंशन लेवल अच्छा है, एक छोटी सी सोशल स्टोरी पिक्चर्स के साथ बना लीजिए, जिसमें आप बच्चे को क्लियरली मैसेज दे रहे हैं कि सपोज दिस इज योर राइटिंग टाइम, हमें पढ़ाई करनी है, यहाँ पर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। सपोज आप पेंसिल, जो हमारा बिहेवियर है उस बिहेवियर को हम टारगेट कर सकते हैं। पहले पॉजिटिव चीजें स्टार्ट करें कि यू राइट्स वेरी वेल, आप नंबर्स अच्छा लिखते हो, आपको केवल थोड़ा सा सपोज 5 में लिखने की जरूरत है, अदरवाइज यू हैव डन वेरी वेल। तो थोड़ा सा पॉजिटिव करिए, स्टार्ट विद पॉजिटिव, फिर आपका जो बिहेवियर है उसको टारगेट कर लीजिए। सपोज दैट उसमें पेंसिल थ्रो करता हुआ एक आपने पिक ले लिया बच्चे का, उस पर एक बिग क्रॉस बना दीजिए, विजुअली बच्चे को आपने दिखा दिया, और उस पर आप एक सैड फेस दिखा दीजिए, उसको बोलिए नो दिस इज बैड, ये नहीं करना है। तो वो हो सकता है इमोशनली उस चीज को समझे। तो सोशल स्टोरीज भी काम कर सकती हैं, और जो मैंने आपको और एक ऑप्शन दिया है कि जिसमें बच्चा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है कभी कभी, तो उसमें आप बहुत सारी पेंसिल अपने साथ रखिए शार्पन करके, जैसे ही बच्चा थ्रो करे आप नेक्स्ट पेंसिल दे दो। मेक हर और हिज अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू कंप्लीट अ टास्क। वहां पर आपको डायरेक्ट एक सिंपल इंस्ट्रक्शन देना है, यू हैव टू फिनिश योर टास्क, आपको फिनिश करना है, और आप पेंसिल्स देते जाइए। लास्ट में जब वो फिनिश हो जाए स्टडी, आप जितनी भी पेंसिल उस बच्चे ने थ्रो की हैं उन सारी पेंसिल्स को उसी बच्चे से पिक कराइए, और वो एक पेंसिल बॉक्स है आपका, उसमें रखवा दीजिए। तो आई थिंक ये हेल्प करेगा, आप ट्राई करिए। अगर आपको इसमें इशू आए तो नेक्स्ट आप प्रमोद सर को लिखिए, आई वुड डेफिनेटली हैप्पी टू आंसर दैट। सर एक और चीज है मेरी डॉटर के साथ, वो अभी पहले जैसे स्पेशल एजुकेटर आते थे तो उनके साथ, उसके बाद अब मेरे साथ काम कर रही है। ओके। तो इवन मतलब हर चाची ऑल्सो ट्राई कि भाई उसके मतलब वो काम करके दिखाए, बट शी वॉज नॉट रेडी टू डू एनी वर्क विद एनीबडी। इस टाइम मेरे साथ इतनी ट्यूनिंग है टचवुड कि वो हर तरीके का काम कर लेती है। देखिए होता क्या है ना, ये जनरली एक बच्चा ना अपना एक लेवल देख लेता है कि सपोज बच्चे का अपना कंफर्ट लेवल बन जाता है कि मुझे किसके साथ काम करना है। और कभी कभी बच्चे की एक हैबिट आ गई कि हाँ मुझे सपोज मम्मा के साथ ही काम करना है। बहुत सारे होते हैं बच्चे जो कि केवल टीचर के साथ काम कर लेते हैं लेकिन पेरेंट के साथ काम नहीं कर रहे। तो इसमें मैं यही सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा बहुत ये जो एकेडमिक रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये हम लोग जो भी बच्चे के साथ लोग इन्वॉल्व हैं, फैमिली मेंबर्स, उन सबको बीच बीच में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज कराते रहना चाहिए, जिससे बच्चे की ट्यूनिंग, बच्चे का एक रैपो हर फैमिली मेंबर के साथ बना रहे। होता क्या है ना, एज ए मदर, एज ए पेरेंट, समझ आप उसको ज्यादा टाइम दे रहे हैं तो उसे पता है कि आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, आप उसको बच्चे को समझेंगे, तो वो आपके साथ ही ज्यादा कंफर्टेबल है, दूसरे लोगों के साथ नहीं है। तो दूसरे लोग राइटिंग नहीं कराएं लेकिन कुछ सिंपल एक्टिविटीज करा सकते हैं, इवन गेम्स खेल सकते हैं बच्चे के साथ, कुछ सिंपल कलरिंग पैकबोर्ड एक्टिविटीज कर सकते हैं जो बच्चे को इंटरेस्ट है। ओके सर। हाँ वो कोशिश करिए, डेफिनेटली ये वर्क करेगा। Thank you, sir. I will do that. Definitely. Thank you. Thank you. Any other question? Sir, I'm Ugandar. Basically, मेरा बच्चा 5 years 6 months है सर. So Okay. 3 साल तक वो इमिटेट भी करता था, जो हम लोग जो बोलते थे उसे भी इमिटेट करता था. अभी भी उसको मान लीजिए उसको नहाते समय अपने हाथ धो लो, तो ही फॉलोज दोज थिंग्स. बट जब क्लास की मतलब उसके स्पेशल एजुकेटर की क्लास में अगर मान लीजिए यू राइज योर हैंड और यू टच योर हैंड, so then he won't do that. And second thing is the imitation thing, right? Sometimes he do, sometimes he don't do. So how we can regularize it, sir? I mean, how we can improve these imitation skills? Basically imitation is a very first skill for in the communication area. So as you said कि sometimes she or he follow the imitations, but sometimes the child doesn't show interest. तो उसमें आपको करना क्या है, you have to start with the simple gross motor imitations first. What are the gross motor imitations? There are 3 kind of imitations. I will explain you one by one. Gross motor imitations like simple jumping, clap hand, touch head, okay, do roly poly, touch your ankle, so touch your soldiers. So these are the basic gross motor imitations. आप बच्चे को जंप करा सकते हैं, रनिंग करा सकते हैं. तो start with gross motor imitations. And imitations means the child has to copy you, है ना. मोस्टली मैंने देखा है ना, कभी पेरेंट्स कंफ्यूज भी हो जाते हैं. इमिटेशन दे सेड कि नहीं, इमिटेशन मींस में वर्बल इंस्ट्रक्शन. वर्बल इंस्ट्रक्शन इज डिफरेंट थिंग, दैट इज इंस्ट्रक्शनल कंट्रोल.
जब आप बच्चे को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि डू रोली पोली, टच योर हेड, दैट इज नॉट इमिटेशन, दैट इज इंस्ट्रक्शन, राइट? इमिटेशन इज मीन्स द चाइल्ड इज फॉलोइंग यू, आप उस एक्टिविटी को खुद कर रहे हैं एंड द चाइल्ड इज फॉलोइंग, राइट? सपोज दैट आप, और इमिटेशन में इट्स बेटर इफ यू यूज द इंस्ट्रक्शन डू दिस इंस्टेड ऑफ टच हेड, टच शोल्डर, इसकी बजाय हम सिंपल करें डू दिस, है ना, डू दिस, डू दिस। सो दीज आर द एक्टिविटीज विच आर ग्रॉस मोटर इमिटेशन। तो इनिशियली आप ग्रॉस मोटर इमिटेशन करें और कोशिश करें कि उसमें फन के साथ हम एक्टिविटीज करें, है ना, हम उसमें कुछ भी एक म्यूजिक चला दिया फिर हम ग्रॉस मोटर इमिटेशंस कर रहे हैं, और एक प्रॉपर ओपन स्पेस, ओपन एरिया में जाके ग्रॉस मोटर इमिटेशंस करें, दैट वुड हेल्प। देन आप उसमें कुछ एक ऑब्जेक्ट इमिटेशन स्टार्ट कर सकते हैं। व्हाट आर द ऑब्जेक्ट इमिटेशन? दैट इज कि आपने कोई भी सिमिलर ऑब्जेक्ट्स ले लिए, सपोज दैट एक आपने प्लेट ले लिया एंड वन स्पून, है ना, जो बच्चे को उसमें एक्टिविटी में मजा आ सकता है। आपने क्या किया, स्पून के साथ आप प्लेट को बजा रहे हैं, सेम एक्टिविटी आप बच्चे से करवा रहे हैं। इमिटेशन है तो बच्चा भी सेम, एक सेट आपके पास है एक सेट बच्चे के पास है, जो एक्टिविटी आप कर रहे हैं बच्चा फॉलो करेगा। दूसरा ऑब्जेक्ट्स में आपने क्या किया, इफ द चाइल्ड हैज इंटरेस्ट इन ब्लॉक्स एंड अदर पैकबोर्ड एक्टिविटीज, आपने क्या किया, एक ब्लॉक्स लिए और उनको अरेंज कर दिया, 5 ब्लॉक्स आपने एक साथ रख दिए, बच्चे को भी बोलिए सेम 5 ब्लॉक्स आप भी एक साथ रखो। ब्लॉक्स की जगह आप ग्लासेस यूज कर सकते हैं घर में, आपने 5 ग्लास बिल्डिंग कर दिया, वो बच्चा कर रहा है। तो दीज आर ऑब्जेक्ट इमिटेशन, जिसमें आप कोई ना कोई ऑब्जेक्ट के साथ कुछ एक्टिविटी करेंगे, है ना। जैसे सपोज दैट आप एक बॉल ले लिया और आप बॉल को ड्रिबल कर रहे हैं या बॉल को आप थ्रो कर रहे हैं, सेम बच्चा बॉल के साथ एक्टिविटी कर रहा है, दैट इज ऑब्जेक्ट इमिटेशन। जब आपको लगे कि हाँ नाउ चाइल्ड इज शोइंग द इंटरेस्ट, वो इमिटेशन फॉलो कर रहे हैं, देन यू कैन स्टार्ट फाइन मोटर इमिटेशंस, राइट? फाइन मोटर इमिटेशंस में क्या है, जिसमें मोस्टली आपको हैंड्स का यूज करना है। सपोज दैट आपने क्या किया, हमारी जो फिंगर टिप्स हैं इनको ज्वाइन कराना, हमने कहा डू दिस, राइट, दिस इज फाइन मोटर इमिटेशन, डू दिस, ये फाइन मोटर इमिटेशन है। सपोज दैट आपने बोला डू दिस, दिस इज फाइन मोटर एक्टिविटीज। तो इस टाइप की फाइन मोटर एक्टिविटीज आप स्टार्ट कर सकते हैं। और जहां पर भी आपको लग रहा है कि बच्चा नहीं इमिटेट कर रहा है, और सपोज दैट आपको लग रहा है द चाइल्ड इज नॉट शोइंग इंटरेस्ट इन इमिटेशन, आप उसके साथ खुद हाथ पकड़ के एक्टिविटीज कराना स्टार्ट कर दो। इनिशियली हो सकता है उसके लिए डिफिकल्ट हो, सपोज वो ये एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है, दिस इज फाइन मोटर एक्टिविटीज, कि अपनी फिंगर टिप्स को पाम के नीचे रखना है। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं, टेक द हेल्प ऑफ हर मदर, आप मदर को भी साथ में बिठाइए, उनको बोलो कि जैसे मैं करा रहे हैं आप बच्चे को करवाइए, तो वो हेल्प करके बच्चे को करा देंगे। जहां आपको लग रहा है कि कोई इमिटेशन डिफिकल्ट है बच्चे के लिए, टेक द हेल्प ऑफ अदर पर्सन, मदर की हेल्प लीजिए, सिबलिंग की हेल्प ले लीजिए, वो उसको कराएंगे आपके साथ। तो अगर आप वो एक्टिविटीज रेगुलर करेंगे, डेफिनेटली बच्चा इंटरेस्ट बिल्ड करना स्टार्ट कर देगा धीरे धीरे से। ओके सर, थैंक यू सो मच। सो आई थिंक जब से वो ग्रेजुअली हमको ये ग्रॉस ऑब्जेक्ट एंड फाइन मोटर में थोड़ा इंटरेस्ट दिखाएगा, दैट मीन्स ही स्टार्ट्स बेसिकली फॉलोइंग अप योर कम्युनिकेशन एंड देन कम्युनिकेशन आल्सो विल इंप्रूव, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, इमिटेशन इज द वेरी फर्स्ट स्किल फॉर दिस कॉग्निशन लेवल। तो वो ओवरऑल सब चीजों को इंप्रूव करेगा, कम्युनिकेशन स्किल, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, कमांड्स फॉलोइंग, रेस्पॉन्डिंग, एवरीथिंग। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। All right. So, do we have any other question from any parent? We have 5 more minutes. Okay, sir. So, अभी हमारे पास कोई क्वेश्चन है क्या लिस्ट में? आई गेस मोस्टली हमने कवर कर ही लिए हैं। हाँ, मोस्ट ऑफ हमने किए। कुछ लोग, एक क्वेश्चन है जिसमें है कि हाउ टू टीच अ किड एट होम। तो मैंने बताया है घर में आपको कैसे होम एनवायरनमेंट में बच्चे को स्टार्टिंग करनी है। एंड इसमें लिखा है व्हाट शुड बी द सिलेबस, है ना। घर पे आप एज ए पेरेंट डिफिकल्ट हमारे लिए होता है कि बच्चे को हम सिखाएं क्या, सिखा तो लेंगे हम, लेकिन सब बच्चा हमारा 5 ईयर का है, उसको हम सिखाएं क्या। तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है एनसीईआरटी की जितनी भी बुक्स हैं, एनसीईआरटी का जो भी करिकुलम है दैट इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। आप टारगेट करिए कि वो सारे वेबसाइट से करिकुलम आप डाउनलोड कर लीजिए। सपोज दैट आपको लगता है कि आपका बच्चा 5 ईयर का है, 6 ईयर का है, तो आपको ग्रेड 1 के लिए बच्चे को प्रिपेयर करना है। तो आप देख लीजिए कि ग्रेड 1 में एनसीईआरटी के सिलेबस में हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ईवीएस में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, आप उन्हीं कॉन्सेप्ट को टारगेट कर लीजिए। तो दोज बुक्स विल गाइड यू
एंड अगर आप थोड़ा सर्च करेंगे, यू कैन फाइंड आउट द मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग ऑन द एनसीईआरटी वेबसाइट. दैट इज कॉल्ड वन थिंग दैट इज कॉल्ड मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग. उसमें होता है कि हम बच्चे की एज के अकॉर्डिंग क्लास के अकॉर्डिंग मिनिमम लेवल क्या होना चाहिए. सपोज बच्चा अगर 6 ईयर का है तो उसको मिनिमम क्या स्किल्स आनी चाहिए हर एरिया वाइज. सपोज इंग्लिश में क्या आना चाहिए, राइटिंग में एक बच्चे को क्या आना चाहिए, साइंस में बच्चे की क्या कॉन्सेप्ट आ जाने चाहिए, तो वो अवेलेबल है. अगर आप उस पर देखेंगे तो वो आपको हेल्प कर देंगे. और इसमें आप किसी एक थेरेपिस्ट की भी हेल्प ले सकते हैं कि हमें सपोज दैट अगर मैं बात कर रहा हूँ 5 ईयर के बच्चे के लिए, तो प्री मैथ कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाने चाहिए. अगर हम मैथ की बात करें, नंबर न्यूमेरेसी में सिंपल मीनिंगफुल काउंटिंग, सिंपल एडिशन, सिंपल वर्ड प्रॉब्लम्स, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट, व्हाट कम्स आफ्टर, बिफोर, ये सारे चीजें हैं जो मैथ में हम सिखा सकते हैं. इंग्लिश में सिंपल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वो स्टार्ट हो जाता है फर्स्ट ग्रेड के बच्चे के लिए. ईवीएस में बेसिक कॉन्सेप्ट्स अबाउट होम, अबाउट फूड, वाटर, ये स्टार्ट हो जाते हैं. तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं. तो थोड़ा सा अगर हम एक्सप्लोर करेंगे, हमें पता चल जाएगा कि ग्रेड 1 में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके लिए हमें अपने बच्चे को घर पे प्रिपेयर करना है. Sir, is Right. it NCERT syllabus, sir? It is which one, sir? It is. Can you please repeat? I missed it. NCERT, It's a website, NCERT website. We have to search or any other. you can find out only NCERT. You can say you can search NCERT books for grade 1, grade 2. आपको वो सारी books you can find out on NCERT website. Yeah, it's available there. You can download it from there. Yes. And one question, ये जो NIS है, they do they follow NCERT books or something else? नहीं, एनसीईआरटी की सी ओवरऑल हमारे इंडिया में जितने भी एजुकेशनल बोर्ड्स हैं, है ना, वो सारे कहीं ना कहीं फ्रेमवर्क जो हमारा है वो सारा एनसीईआरटी का जो डेवलप किया हुआ है वही वो फॉलो करते हैं, है ना. जो हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है एनसीएफ, दैट इज कॉल्ड, तो एनसीएफ को ही सारे बोर्ड्स फॉलो करते हैं. तो ऑलमोस्ट सारा सिलेबस हल्का फुल्का वो अपने आप मॉडिफाई थोड़ा बहुत कर लेते हैं. बट अगर ओवरऑल देखेंगे तो दैट वुड मैच विद द एनसीईआरटी सिलेबस. तो एनसीईआरटी का सिलेबस तो एक आपके पास है. दूसरा, अगर एनआईओएस की स्पेशली हम बात करें तो हाँ, कॉन्सेप्ट्स वही हैं एनसीईआरटी के, बट उन्होंने काफी सिलेबस को रिड्यूस किया हुआ है, काफी मॉडिफाई किया हुआ है एनआईओएस ने. तो उनका भी सिलेबस एनआईओएस की वेबसाइट पे लर्निंग मटेरियल करके अवेलेबल है. अगर आप लर्निंग मटेरियल सर्च करेंगे, लर्निंग मटेरियल फॉर लेवल ए, लेवल बी, एनआईओएस में क्या होता है ना, फर्स्ट और सेकंड ग्रेड नहीं होता वहां. मैंने जैसे बताया केवल बेसिक ओबी लेवल जिसको बोलते हैं, वहां केवल 3 ग्रेड्स होते हैं, 3rd, 5th और 8th. वहां बच्चे को 6th करने की जरूरत नहीं है, 7th करने की जरूरत नहीं है. एक बार बच्चा अगर रेडी है तो डायरेक्ट 8th क्लास के लिए वो प्रिपेयर करेगा लेवल सी के लिए. तो लेवल वाइज वहां पर मटेरियल अवेलेबल है. मोस्टली कॉन्सेप्ट वही है जो एनसीईआरटी में है, बट उन्होंने काफी रिड्यूस कर दिया है, सिंप्लीफाई कर दिया है काफी एक्चुअली. तो अगर आप एनआईओएस को माइंड में रख के प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो एनआईओएस की वेबसाइट से वो लर्निंग मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं और बच्चे को प्रिपरेशन करा सकते हैं उसके अकॉर्डिंग. Okay. Actually, there are too many questions related to NIOS and homeschooling. So, and I think like we can have a separate webinar on that because because there are too many things. थोड़ा सा अवेयरनेस आया है क्योंकि पहले क्या था ना, सी नाउ दिस इज द फेज जहां पर अब पेरेंट्स कहीं ना कहीं, मुझे जो लगता है कि वो नाम के लिए इंक्लूजन वाला जो एक वर्ड है ना कि बस इंक्लूसिव स्कूल में जा रहा है. नाउ पेरेंट्स हैव सीन द रियलिटी. उन्हें पता है कि केवल नाम के लिए 10 साल बच्चे को भेजने के कोई फायदा है नहीं, अल्टीमेटली कुछ हाथ आने वाला नहीं है. तो बेटर है कि उसको हम होम स्कूलिंग करके अच्छे से प्रिपेयर करके, एक सर्टिफिकेट की बात है तो एनआईओएस, अब हाँ लास्ट कुछ सालों से एनआईओएस में बहुत ज्यादा हमारे बच्चे एनरोल हो रहे हैं और बहुत सक्सेसफुली कर भी रहे हैं बच्चे एनआईओएस. Right. Right. So I think if we don't have any question, then we can close this session today. Sir, I have one last question. Sir, suppose Yeah, please. Any boy completes up to the 3rd level in NIOS. So suppose then later we realize that he is ready for a regular school. I mean, does it the validity part is okay, sir, or do they have to take any separate Yes, test sir. again? Perfectly fine, no issue. Suppose that if you have done OB level A from the NIOS and now you wish to continue with the mainstream school, so they will allow, any CBSE school will validate the NIOS certificate.
Okay, sure. Sir, and one more, I mean, sorry for taking more time, but any No issue. best tips for a concentration part of it, sir? Because sometimes, my boy, he has got a speech delay, but if we don't put him in a kind of a classroom type, or like, in online class type, or without showing a mobile and all, he is, to some extent, he's okay. But the moment we go to the special education type of, now due to COVID and all, most of things are going online. So then he doesn't sit, or he try to go away and all those things. So how we can improve that concentration part, sir? See, actually, this we have to assess what are the triggers, right? What are the things which distract him, or which are the obstacles in his concentration part, that we have to find out actually. Suppose that if the outside environment where is lots of distraction is there, if that affect the child's concentration, that we have to work on the reducing that distractions. But anyhow, we have to train the child. We have to keep the child for any kind of situation. Suppose that if there are some distractions in that situation, also you have to perform your activity. Suppose that you have to do your study. So that is the training part, step by step. Suppose that initially we are doing study in a separate room, is in a study room. Take it to the common area, dining area. Let's start some activities in dining area, some activities in the study room. Let's do some activities with his peer group. Let's do some activities with his siblings. So this is how we can build his concentration level, right? तो धीरे धीरे अगर आप स्टार्ट करेंगे, आप कभी कभी कोशिश करिए कि उसको पार्क में ले जाके 4 एक्टिविटीज हम कराएंगे एकेडमिक की कुछ, apart from the play activities. So that would improve his concentration skills, I feel. Okay, sir. Thank you. Basically, it is how he has learned, he has managed कि नहीं मुझे स्टडी करना है तो मुझे प्रॉपर रूम में ही करना है, राइट? तो अगर हम उसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करेंगे, that would help. Okay, sure, sir. Thank you. सर एक क्वेश्चन था। Yeah, सर please go अगर ahead. बच्चा मतलब 3.8 इयर्स का है और वो इंग्लिश रीडिंग कर लेता है, क्या उसको हिंदी रीडिंग भी इंट्रोड्यूस करानी चाहिए? उसको आई आता है और इंग्लिश लिख लेता है, बट हिंदी नहीं आती है, तो क्या हिंदी रीडिंग इंट्रोड्यूस करनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। अगर बच्चे को इंग्लिश रीडिंग आती है, उसने आप बोल रहे हैं कि हिंदी में रिकॉग्निशन है, आई उसको आते हैं, तो बिल्कुल हिंदी रीडिंग भी करा सकते हैं। ऐसा कहीं भी नहीं है कि हमें बच्चे के साथ एक लैंग्वेज लेके चलनी है, ये भी थोड़ा मिसकंसेप्शन है। हाँ, इनिशियल स्टेज में हमें एक लैंग्वेज पे काम करना है, जिससे कि बच्चे को कंफ्यूजन ना हो। बट वंस द चाइल्ड हैज डेवलप बेसिक प्रीरिक्विजिट, बेसिक रेडीनेस स्किल, हिंदी भी एक लैंग्वेज है, एज ए लैंग्वेज हमें डेफिनेटली वो सिखाना चाहिए, और सीख भी लेगा बच्चा अगर हम काम करेंगे तो। अच्छा, वही था कि दो लैंग्वेजेस से कंफ्यूजन तो नहीं होगी, ऐसा करानी चाहिए नहीं, ना? बिल्कुल भी नहीं। अगर हम सेपरेटली लेके चलेंगे, पहले से प्लान करके चलेंगे, कोई इशू नहीं आएगा। ओके, थैंक यू। I have a question, sir. Yeah, please. My son is 7 years old and उसको last year जब ये COVID हुआ तो हमने घर में पढ़ाना शुरू किया and we started from scratch. As on today, he is really good in academics in the sense कि independently हिंदी की बुक, इंग्लिश की बुक वो पढ़ सकता है। अभी स्पीच में भी काफी चेंज आया। अब वो जैसे कम्युनिकेशन हमसे थोड़ा थोड़ा स्मॉल सेंटेंसेस में करने लगा है। अभी क्या है, अगर मैं उससे वर्बली ऐसे ही बात करूं कि तुम क्या खा रहे हो, तो जैसे वो मुझे शायद आंसर कर देगा दाल चावल। लेकिन अगर वो चीज किताब में लिखी है तो उसको वो रीड तो कर लेगा पूरा बहुत अच्छे से, बट कॉम्प्रिहेंशन करना, उसको अंडरस्टैंड करना, वो चीज नहीं आ रही है कि वो जो आप पढ़ रहे हो आप उसको, आप सिर्फ प्लेन रीडिंग नहीं करो, आप उसको पढ़ के समझो और मुझे बताओ। जैसे वो चीज नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं कॉम्प्रिहेंशन में कहीं कहीं हम मिस कर रहे हैं कोई चीज। आई हैव बीन ट्राइंग फॉर वेरी लॉन्ग, बट कॉम्प्रिहेंशन में कुछ आ रहा है इशू। राइट, सी जो आप बात कर रहे हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ही सिंपल यही है कि गेट द मीनिंग फ्रॉम द टेक्स्ट। जो भी बच्चे ने लिखा हुआ पढ़ा है उससे क्या मीनिंग बच्चा पिक कर रहा है, दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो जो आप मुझे बता रहे हैं कि वो लिंक नहीं कर पाते रीडिंग को बेसिक जो इनकी अंडरस्टैंडिंग है उससे, तो उसके लिए हमें करना क्या है कि पहले आपको सिंपल जो वर्ड्स हैं जितना ज्यादा हो सके बच्चे की विजुअल इमेजरी पे काम करिए। व्हाट इज विजुअल इमेजरी? विजुअल इमेजरी मीन्स जो बच्चा पढ़ रहा है
उसका पिक्चर भी बच्चे के माइंड में बने। सपोज दैट जो हम बच्चे को स्टार्टिंग में इनिशियल लेवल में सीबीसी वर्ड्स को मैच करना सिखाते हैं कि कैट पढ़ो, दिस इज कैट, नाउ फाइंड आउट वेयर इज द कैट, मैच करो। इसको थोड़ा हम कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स क्या कर सकते हैं, जिसमें बच्चे के लिए और भी परसेप्चुअल स्किल्स इन्वॉल्व हो सकती हैं। दैट इज सपोज दैट हमने एक बॉक्स बनाया, एक बॉक्स में हमने 10 वर्ड्स लिख दिए, सिंपल सीबीसी वर्ड्स आते हैं, कैट, डॉग, बस, पिन, और एक उसके नीचे एक हमने बड़ा सा जो स्पेस है उसमें क्लाउड बना के कुछ भी हमने बहुत सारी पिक्चर्स बना दी उसके अंदर। नाउ फर्स्ट लेट द चाइल्ड रीड द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। सपोज दैट फर्स्ट वर्ड इज पिन, तो बच्चे ने रीड किया पिन। नाउ आस्क द चाइल्ड टू फाइंड आउट वेयर इज द पिन इन द पिक्चर्स। नीचे जो बहुत सारी पिक्चर बनी है उनमें से वो पिन सर्च करेगा, उसको सर्कल करेगा। सपोज दैट नेक्स्ट वर्ड उसने रीड किया फ्लैग, ठीक है, तो फ्लैग कहां पर बना हुआ है वो नीचे सर्च करेगा। तो दिस इज हाउ यू बिल्ड द बेसिक वर्ड एंड सिंबल एसोसिएशन इन हिज माइंड। वो बच्चा एक विजुअल इमेज बनना स्टार्ट हो गया। अब आप क्या कर रहे हैं, जो आपने सिंपल सेंटेंसेस कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट करना है, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस कॉम्प्रिहेंशन। सेंटेंस कॉम्प्रिहेंशन क्या है, आपने एक सेंटेंस रीड करने के लिए दिया बच्चे को, अ कैट इज ऑन द मैट, दिस इज सिंपल सेंटेंस, अ कैट इज ऑन द मैट। सेम वही बड़ा सा पिक्चर आपने बना दिया जिसमें एक मैट बना हुआ है और एक कैट है। फिर आप बच्चे को रीड करने के लिए बोलिए अगेन, कैट इज ऑन द मैट, पिक्चर को देखने के लिए बोलिए, उसने वो कहीं ना कहीं एसोसिएट कर लिया। देन यू स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन लाइक व्हाट कैन यू सी इन द पिक्चर, बच्चा बोलेगा आई कैन सी अ कैट, कैट एंड मैट। नाउ यू कैन आस्क वेयर इज द कैट, इनिशियली थोड़ा हिंट करिए, ऑन द मैट। तो दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट विद द सिंपल सेंटेंस कॉम्प्रिहेंशन। सेंटेंस के बाद आप 2-3 सेंटेंसेस को ज्वाइन करके कॉम्प्रिहेंशन करा सकते हैं। जैसे सपोज दैट वहां लिखा है 3 सेंटेंस लिखे हैं, दिस इज टी, दिस इज कप, एंड थर्ड सेंटेंस इज द टी इज इन द कप। तो पहले सेंटेंस में के सामने आपने एक कप बनाया जिसमें टी है, दूसरे में आपने केवल कप बनाया, एंड नेक्स्ट पिक्चर में आपने बच्चे के साथ एक पूरा पिक्चर एसोसिएट कर दिया जिसमें कप में टी है। देन यू आर आस्किंग लाइक व्हाट इज इन द कप, बच्चा आंसर करेगा टी। तो इनिशियली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको जितना ज्यादा हो बच्चे की विजुअल इमेजेस पे काम करना है, जितना ज्यादा आप कर सकते हैं पिक्चर्स के साथ सिंपल सिंपल सेंटेंसेस को एसोसिएट करिए। एक बुक है वो आपको काफी हेल्प कर सकती है इसमें, अगर आपको ऑनलाइन मिल जाए यू कैन ट्राई। देयर इज अ फिट्जरॉय रीडिंग सीरीज जिसमें उनकी 10 बुक्स हैं लेवल 1 के लिए। फिट्जरॉय Can you रीडिंग, repeat that, sir? Can you repeat that? इट इज फिट्जरॉय Okay. फिट्जरॉय रीडिंग बुक्स। आप आई थिंक सर्च करेंगे तो, आई हैव नेवर ट्राइड, अमेजोन पे अवेलेबल है आई थिंक, तो आप ट्राई कर सकते हैं। उनकी 10 बुक्स का उनका सीरीज है, तो उन्होंने बहुत अच्छे से इलस्ट्रेट किया हुआ है। जो मैं आपको बोल रहा हूँ उन्होंने सेम वही किया है। सपोज दैट उन्होंने लिखा है दिस इज डॉग, तो बहुत एक पिक्चर पे टेक्स्ट तो केवल टॉप में एक लाइन डला है, बस पूरा पेज पे पिक्चर बना हुआ है। तो उसमें क्या है, बच्चे के माइंड में क्लियर इमेज आना स्टार्ट हो जाता है। सो दिस would help the child to understand the text meaningfully। तो जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का इश्यू आ रहा है काफी हद तक उसमें वो एड्रेस हो जाता है। Right, sir. Thank you, sir. कि मेरा बेटा पढ़ तो ले रहा है मगर समझता नहीं है, तो उसने बताया सेम ना वही चित्र इशू है, बना बना के तब उसके दिमाग दिस में इज image वेरी बनती कॉमन इशू, वेरी कॉमन, जिसमें बच्चा रीडिंग बहुत अच्छा है ना। कुछ बच्चों में एक क्वेश्चन भी आया था हाइपरलेक्सिया का, जिसमें कि मेरा बच्चा हाइपरलेक्सिया है। ऑटिज्म में एक कंडीशन ऐसा आता है जिसमें बच्चा रीडिंग तो बहुत फ्लुएंटली कर लेता है बट वो मीनिंग नहीं समझ पाता, दैट इज कॉल्ड हाइपरलेक्सिया। तो उसमें यही इशू है, आपको बच्चे को परसेप्चुअल ट्रेनिंग की जरूरत है वहां पर, जितना ज्यादा हो सके विजुअल्स के साथ, इमेजेस के साथ उन पे काम करना है, बच्चे की मेमोरी स्किल पे काम करना है, बच्चे के एसोसिएशन स्किल्स पे काम करना है, पिक्चर एसोसिएशंस, मेमोरी को सीक्वेंस में बताना, सीक्वेंशियल मेमोरी पे काम करने की जरूरत है। तो 2000 परसेप्चुअल स्किल्स, उनमें हमें काम करने की जरूरत पड़ती है बच्चे के साथ। सर एक क्वेश्चन था कि मतलब मेरा बच्चा स्टोरी टेलिंग जैसे बॉक्से जाते हैं तो मैं उसको वो दिखाती हूँ और उस पर उसको समझाती हूँ, जैसे आपका हो गया टर्टाइज एंड हेयर की स्टोरी हो गई, तो उसको वो समझ तो रहा है, मतलब जब मैं बता रही हूँ तो वो सुन रहा है, उसको ऑब्जर्व भी कर रहा है, बट जब उससे पूछती हूँ कि तुमने स्टोरी में क्या पढ़ा क्या सीखा तो वो एक कोऑर्डिनेशन नहीं बैठा पाता है।
मतलब हम फर्स्ट यही में बात क्या कर हुआ? रहे हैं, ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड ही इशूज है मैम, जो मैं अभी बता रहा हूँ ना आपको। उसमें क्या है, वो बच्चा बस टेक्स्ट रीड कर रहा है, वो कॉम्प्रिहेंड नहीं कर रहा है, वो उसके बच्चे के माइंड में इमेज नहीं आ रहा कि वो क्या पढ़ रहा है। तो पहले हमें ऐसे रीडिंग करानी है जिसमें पिक्चर्स के साथ रीडिंग हो। पिक्चर्स के साथ रीडिंग कराइए, टेक्स्ट को एसोसिएट करिए विजुअल इमेजेस के साथ, उससे क्वेश्चंस करिए, वो धीरे धीरे फिर हम स्टोरी फॉर्मेट में जा सकते हैं। के साथ ही है वो, मतलब पिक्चर बनी हुई है एंड नीचे में स्टोरी लिखी है, तो मैं इसको स्टोरी रीड करने को नहीं बोलती हूँ, स्टोरी मैं उसे बताती हूँ कि इसमें एक रैबिट है, इसमें एक टॉर्टोइज है, ये दोनों फ्रेंड्स हैं, बातें कर रहे हैं। तो ये बातें वो सुन लेता है मुझसे, बट जब मैं उससे पूछती हूँ कि तुमने क्या सुना, क्या समझे तुम इस स्टोरी से, पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, उसको वो इजिली डिफाइन नहीं कर पाता है। हाँ, देखिए ये मेनली जो मैं आपको वही बता रहा था, परसेप्चुअल स्किल की वजह से ही है। उसमें क्या होता है कि बच्चे की सिक्वेंशियल मेमोरी जो है, जो इवेंट मेमोरी है, वो सीक्वेंस वे में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है बच्चा। तो इसमें हमें स्टेप बाय स्टेप जाने की जरूरत होती है। सपोज दैट हमने पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन से स्टार्ट किया। इनिशियली आप क्या करिए, बच्चे को पूरा इवेंट को या पूरी स्टोरी को रिकॉल करने के लिए मत बोलिए। इनिशियली आप जो इंफॉर्मेशन है बच्चे से, वो एक सिंपल वर्ड्स में लीजिए। सपोज दैट आप पूछ सकते हैं, हाउ मेनी ट्रीज आर इन दिस पिक्चर, वो काउंट करके बताएगा, सपोज दैट 5 ट्रीज हैं। लाइक हु इज सिटिंग ऑन द बेंच, बेंच पे कौन बैठा है इस पिक्चर में, बच्चा आपको आंसर करेगा। हु इज राइट साइड ऑफ द ट्री, ट्री के राइट साइड में क्या है, बच्चा जो भी पिक्चर देखेगा उसको आंसर करेगा। व्हाट इज फ्रंट ऑफ द ट्री, ट्री के सामने क्या है, या बेंच के सामने क्या है। अब सपोज दैट दो बच्चे उस पिक्चर में एक सैंड कैसल बना रहे हैं, तो आप पूछ सकते हैं, व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग, बच्चे क्या कर रहे हैं, या हु आर मेकिंग सैंड कैसल, सैंड कैसल कौन बना रहा है, बच्चा आंसर करेगा, चिल्ड्रन बना रहे हैं, बॉयज बना रहे हैं, बेबी बना रहा है। तो ये जो हमारा इंफॉर्मेशन बच्चे से जो पहले मैंने सिंपल वर्ड्स में, फ्रेजेस में स्टार्ट किया, उसको प्रॉपर सेंटेंस में लाने के लिए अगेन फिर हमें ट्रेनिंग की जरूरत है। फिर उसको हम बोलेंगे ओके, अब आपने वन वर्ड में आंसर दे दिए, अब आपको पूरा सेंटेंस में आपको रेस्पॉन्ड करना है। सपोज दैट इफ आई एम आस्किंग हु इज मेकिंग सैंड कैसल, बच्चा पूरा बोलेगा द बॉयज या द चिल्ड्रन आर मेकिंग सैंड कैसल। तो उसको फिर आप उन पे इवेंट्स पे नंबर डाल दीजिए। समझ पिक्चर में आपने नंबर डाल दिए कि फर्स्ट वाला आपको बोलना है, जिसमें आपको देखना है बच्चे जो कैसल बना रहे हैं, ये सेंटेंस नंबर 1 पे बोलना है। समझो जो बेंच वाला सेंटेंस है वो नंबर 2 पे बोलना है। क्लाउड से रिलेटेड सेंटेंस है ऊपर 3 पे बोलना है। समझो रोड पे कार है वो 3 पे बोलना है। तो आपने एक बच्चे को नंबर सीक्वेंसिंग क्लू दे दिया, तो वो बच्चा फिर कोशिश करेगा कि पहले जो मुझे बोलना है वो फर्स्ट नंबर वाला बोलना है, फिर सेकंड नंबर वाला बोलना है। तो इसकी बहुत सारी टेक्निक्स हैं। अभी वो पॉसिबल नहीं है कि मैं सारी टेक्निक आपको अभी यहाँ बता पाऊँ, लेकिन हाँ, अगर हम प्रॉपर प्लान करेंगे उस बच्चे के साथ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की एक्टिविटीज, पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन से आप स्टार्ट करिए, पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन से फिर टेक्स्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे लेके आइए, फिर उसको जो आप बोल रहे हैं दैट इज एक्सप्रेशन पार्ट है ना, दैट इज सेल्फ एक्सप्रेशन, जिसको हम बोलते हैं ना कि रिटन एक्सप्रेशन, जो आपने देखा लिख के बता दो, या जो आपने बोला वो वर्बली बता दो, वर्बल एक्सप्रेशन की बात है। तो वो एक नेक्स्ट स्टेप है, आपको देखना पड़ेगा क्या आपके बच्चे ने जो फर्स्ट 2 स्टेप्स है उनको कवर कर लिया है, क्या वो कॉम्प्रिहेंशन उसका बेटर है, फिर हम एक्सप्रेशन पे जाएंगे नेक्स्ट पार्ट, राइट? ओके सर, थैंक नहीं बस। ओके, 15 मिनट ओवर हो चुके हैं। किसी के पास कोई क्वेश्चन है? नहीं तो फिर हम लोग उसको नेक्स्ट वेबिनार में एड्रेस करेंगे उन क्वेश्चंस को। I guess we are good for now, sir. We can close this session. Right, sir. Okay. Thank you. Yeah. Thank you, everyone, and thank you, sir, for answering all the questions. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir. Most welcome, everyone.